Hello friends, today we will see the topic that is example on the basis of parameter of induction motor. Now parameter of induction motor that we have already covered in last session. So in last session we have already seen the different parameters of induction motor. Okay, so in that we have seen the slip. Again, first is a slip, then synchronous speed, okay, slip equations, okay, then we have a frequency of rotor, okay, at running condition and at standstill condition, okay, then we have defined the slip relation at standstill and running conditions, okay, then we have defined the rotor current equation, okay, rotor current and at standstill means rotor in stop condition, okay, zero speed is there. So at standstill we have a rotor current, okay, and power factor is there R2 by Z2, where Z2 is your impedance under root R2 square plus X2 square. X2 is your reactance, R2 is the resistance of rotor, okay, that we have already defined. So this is for a stator standstill conditions, and then we have a running condition also, okay. So slip is multiply with the equation, so finally we can find the running condition, okay, power factor at running condition. Then we have defined the torque equation, Imp1, we can say torque at running conditions, okay, and the torque at a standstill condition. And again we have defined one more equation, that when torque is maximum, so condition for maximum torque, so we know that nothing but R2 equal to X2 at standstill condition. अगर रनिंग कंडीशन में जाते हो तो S मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लिप कम इन द पिक्चर, वी कैन से जब रनिंग कंडीशन में होगा तो स्लिप पिक्चर में आएगा, क्योंकि स्पीड रोटर स्पीड पिक्चर में आ रही है. अगर स्टैंड स्टिल मोड है, रोटर रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो स्पीड ज़ीरो है रोटर की, तो एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस के फॉर्म से हमें डिफाइन करते हैं, तो स्लिप वन हो जाएगा, ओके. सो रनिंग कंडीशन में स्लिप पिक्चर में आ जाएगी, ओके ओके. सो दिस थिंग, देन वी हैव अगेन डिफाइंड द मैक्सिमम टॉर्क जब हो रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट इज द स्लिप, दैट स्लिप इज नोन एज अ मैक्सिमम स्लिप, ओके. सो दैट we have already defined in last session. So here are some equation, standard equation is there, okay okay. And then we have seen the what happened when changes of different parameter is there, okay, that we have already seen, okay. So our today's topic is example on the basis of that parameters, okay. So let's it's Imp1, we can say. So first example say, okay, what is given here? Example say a 4-pole pole is given, a 4-pole 3-phase induction motor operated from a supply whose frequency is 50 Hz, okay. तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 4-pole, P is given, P दे दिया है आपको, क्या दिया है 4-pole, and frequency, supply frequency is given, that is a 50 Hz, okay, supply frequency is given. Now what you have to calculate, you have to first of all calculate the speed at which the magnetic field of stator is rotating. Now rotating magnetic field की स्पीड क्या होती है, that is nothing but a synchronous speed. वो अभी हम पता है कि synchronous speed से वो रोटेट हो रहा है, rotating magnetic field, and ns equal to, we have equation ns equal to 120 f upon p. So now put all the data here, so we have equation that ns equal to 120 f upon p. Now put the frequency here and pole here, because we have both frequency is there and pole is there. So finally I can write 120 into 50 upon 4. So finally I can find this rotating magnetic speed, okay, and that is 1500 rpm. So one point is clear. Now then secondly, what is given, you have to find the speed of rotor when slip is 0.04, speed of rotor when slip is 0.04. now तो rotor speed का equations क्या है, n equal to, ये standard equations है, n equal to ns in bracket 1 minus s, where ns is your synchronous speed and s is your slip. So both we have, ns हमने पहले फाइंड आउट कर दिया है, स्लिप तो उन्होंने दे दी है, दैट इज कब फाइंड आउट करनी है, जब स्लिप 0.04 है. नाउ पुट दैट
1500 1 minus 0.04, so you can find the rotor speed कब, जब स्लीप 0.05 है, that is 1440. Okay, then we have you have to find the frequency of rotor current. अब rotor current की frequency find out करनी है कब, जब sleep is 0.03. Okay, so we have equation rotor frequency equal to sleep into supply frequency. Okay, sleep उसने दे दिया, क्या दिया है 0. Put that here, sleep s equal to 0.03 and frequency is 50. So we have equation s into f 0.03 into 50. So this is the rotor frequency of rotor कब, जब sleep 0.03 है. Okay, and lastly what you have to find, lastly you have to find the frequency of rotor current at standstill. अब at standstill पे क्या है, we have already decided standstill condition कौन सी है, so ns माइनस n अपॉन ns हमारा जो इक्वेशन, तब अब standstill पे क्या होगा, रोटर स्पीड क्या है 0, तो स्लिप क्या हो जाएगी s इक्वल टू ns अपॉन n, दैट इज कैंसल्ड आउट करते तो s क्या मिलेगा हमें 1. तो एट स्टैंड स्टिल पे स्लिप 1 होती है, टेक इन माइंड. तो एट स्टैंड स्टिल स्लिप क्या है 1. सो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एस इंटू एम हमारे पास इक्वेशन ना. नाउ पुट एस इक्वल टू 1 एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज. सो एट स्टैंड स्टिल वी कैन से रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी defined in theory portion. Okay, so I hope you have clear with this. Okay, now let's see one more example. Okay, now second one, here what is given, a 3-phase induction motor is wound for 4 pole is given and supply is free, 50 hertz is given. So pole and supply frequency is given. Now you have to find the synchronous speed. Now it's easy, you have put the equation ns equal to 120 f by p, so you can find the synchronous speed here. Pole is given and frequency is there. Okay, so put in this equation, you can find. So 120, frequency is 50 and pole is so 1500 rpm. Now then you have to find the rotor speed also. Now rotor speed के लिए भी equation पता है, n equal to ns 1 माइनस एस. अब सिंक्रोनस स्पीड तो हमने फाइंड आउट कर दी है, पर व्हाट इज द स्लिप. सो स्लिप इज गिवन, क्या बोला है उसने, यू हैव टू फाइंड द रोटर स्पीड कब, व्हेन स्लिप इज 0.04 और 4%. नाउ पुट हियर 0.04 और 4%, हियर परसेंटेज गिवन, हियर 0.04 कन्वर्ट कर दिया है. सो फाइनली यू कैन फाइंड द रोटर स्पीड. ओके, नाउ then what is that, you have to find the rotor frequency when rotor run at 600 rpm. Okay, so first of all you have to find the slip, because rotor speed rotor frequency के लिए आपको slip पहले find out करनी पड़ेगी. अब यहाँ स्टैंड स्टिल कंडीशन नहीं है, रोटर की स्पीड दिया हुआ है 600 rpm, तो स्लिप इक्वल टू वी हैव इक्वेशन ns माइनस एन अपॉन ns. सो ns माइनस एन अपॉन ns. So put the value 1500, that is your synchronous speed. Then rotor speed तो 600 rpm दे दिया है उसने, डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड. तो स्लिप मिल गई आपको 0.6. सो नाउ रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इंटू एस इंटू एफ. अब एस हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 0.6 एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. सो यू कैन फाइंड दैट इज 30 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी. Okay, then we have one more examples, and that's a 12 pole 3-phase alternator. Now alternator is nothing but a AC generator. Okay, alternator is a generator of 12 pole, और 12 pole का generator है. 3-phase alternator driven at a speed of, ये उसकी स्पीड है 500 rpm. सप्लाई अ पावर टू अ 8 पोल इंडक्शन मोटर. 3-phase इंडक्शन, ये 3-phase इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है. ओके, और इंडक्शन मोटर के पोल 8 है और जनरेटर के पोल कितने हैं 12. ओके, देन यू, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड. सो इफ द स्लीप ऑफ मोटर एट फुल लोड 3% इज देयर. स्लीप दे दिया है मशीन का,
सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटर. अब स्पीड यू हैव टू फाइंड कि रोटर स्पीड क्या होगा. ओके, सो रोटर स्पीड का इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप हमारे पास ये भी है और हमने आगे भी डिफाइन किया हुआ है, ये भी है. ये इक्वेशन सेम ही है, यू कैन पुट ये और ये सेम ही है. सो स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन. अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, पर फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो दी स्लिप एंड सिंक्रोनस स्पीड. अब स्लिप जो उन्होंने दे दिया है 3%, यहाँ दे दिया है 3%, बट व्हाट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड. अब सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी है. पोल दे दिया हुआ है, पर व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है. सो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन है पोल. ओके, तो ये सप्लाई साइड से जो जनरेटर जनरेट कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 500 RPM. ओके, सो F इक्वल टू 12 पोल इज देयर, speed is there, that is a 500 RPM and divided by 120. So you can find the supply system frequency and that is a 50 hertz. Okay, that is a 50, sorry, it is a 50 hertz. So 50 hertz frequency now you got. So now you have standard equation ns equal to 120 f by p. Okay, बट हियर पोल इज़ 8. ये हमने फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है और सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, जनरेटर से मिल रहा है. तो जनरेटर के पोल कितने हैं. ओके, जनरेटर के पोल 12 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ उसके पोल और उसकी स्पीड. तो उसके पोल 12 है और उसकी स्पीड है 500 RPM, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये मिल रही है. अब फ्रीक्वेंसी सप्लाई की मिल गई तो हम मशीन जो वो सप्लाई दे रहा है इंडक्शन मोटर को, तो उसकी स्पीड क्या होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की NS 120 F by P. अब फ्रीक्वेंसी 50 हमने फाइंड आउट कर दिया है और पोल कितने हैं मशीन के 8 है इंडक्शन मोटर. सो ये उसकी सिंक्रोनस स्पीड. नाउ पुट द सिंक्रोनस स्पीड हियर and slip value that is given 3% here. So you can find the rotor speed. Understood? Okay, so I hope you have clear with this. Okay, okay, so now next example. So example say a 3 phase is here. Example say 3 phase induction motor having a star connected rotor has a induced EMF. Induced EMF कितना है 80 volt. 80 volt between slip ring. 80 volt is given, means line voltage is given between slip ring at standstill condition पे 80 volt दिया हुआ है. The rotor have a resistance and reactance per phase. तो रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस 1 ओम एंड रिएक्टेंस 4 ओम दिया हुआ है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट पर फेज एंड पावर फैक्टर. आपको करंट फाइंड आउट करना है, रोटर करंट फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर कब, जब स्लिप रिंग आर शॉर्ट सर्किटेड, जब स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड है, और दूसरा जब स्लिप रिंग आर कनेक्टेड विथ स्टार कनेक्टेड रोटर स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर और रियोस्टेट ऑफ 3 ohm per phase. Okay, so you have to find the rotor current and power factor with two different condition. Okay, so first of all what is the induced EMF, that is 80 volt is given. So here पर फेज वोल्टेज कितना होगा पर फेज, तो डिवाइड बाई √3 करोगे तो पर फेज ये लाइन फॉर्म में है तो फेज फॉर्म में मिल जाएगा, डिवाइड बाई √3 फेज सिस्टम इज दैट. सो we know V phase equal to VL by √3, that will give the phase voltage. Okay, V phase equal to VL V line by √3, that is here. Okay, so 80 by √3, that is 46.2. Okay, now we have to find the rotor current. तो करंट के लिए हमारे पास इक्वेशन I इक्वल टू V by Z. ओके, तो वोल्टेज तो दिया हुआ है. अब Z के लिए हमें रेजिस्टर और रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो इम्पीडेंस क्या होगा, रोटर इम्पीडेंस अंडर रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस इम्पीडेंस स्क्वायर. ओके, सो ये हमें मिल गया Z. ओके, 1 इज योर रेजिस्टेंस एंड 4 इज योर रिएक्टेंस. ओके, सो 4.1
2, that is your Z. Okay, now you have a voltage and you have a Z, so you can find the current V by Z. So finally this is your rotor current. Now power factor you can directly find power factor equal to, okay, power factor का इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा है कि दैट इज़ R बाई जेड. अब रेजिस्टेंस क्या है, 1 है. ओके, एंड Z हमने फाइंड आउट किया है 4.12. तो R बाई जेड दैट इज़ 1 बाई 4.12, दैट इज़ अ पावर फैक्टर एंड 0.243. ओके, सो दैट इज़ योर पावर फैक्टर. ओके, so which is very low, we can say, because it's a starting condition. The power factor is very low of induction motor at starting. Okay, now अब ये फेस के लिए हमने फाइंड आउट किया कि व्हेन स्लिप रिंग इज शॉर्ट सर्किटेड. नाउ व्हेन लेट्स से सेकंड पोर्शन, स्लिप रिंग आर कनेक्टेड टू अ स्टार कनेक्टेड रजिस्टर. ओके, 3 ओम. तो रजिस्टर तो 1 ओम था और 3 ओम ऐड हो रहा है इसमें. नाउ in this condition total resistance क्या होगा, 1 plus 3, the total resistance is 4. Okay, so total resistance is now 4. So what is the impedance at that time? So that is a 5.66. reactance तो वही रह रहा है पर resistance चेंज हो रहा है. So now rotor current, same equation, rotor current का I equal to V by Z, voltage 46.2 is there and impedance is here 5.66. so now rotor current is 8.16 and now power factor is nothing but R by Z. Okay, and that is a 0.707. here it is a 0.243 and here 0.700. इसमें चेंज क्या है, इसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर रहे, यहाँ हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं. तो फ्रॉम दैट वी कैन से कि एज अगर आप रोटर साइड रेजिस्टेंस ऐड करोगे so you can improve the power factor also. Okay, so power factor improve होता है. Okay, that is given here, मैंने लिखा हुआ है मैंने. ओके, और करंट भी देखो, यहाँ करंट क्या आ रहा है, वो तो ऑब्वियस है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी डिक्रीज होगा और पावर फैक्टर भी इंक्रीज. यहाँ करंट डिक्रीज हो और पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो आई होप you are clear with this. Now numbers of examples are there. Okay, now let's take one last examples. Okay, so you can take okay, let's see one more example in the form of some torque. Okay, torque equation is there. Okay, so clear हो जाए कि भाई इसमें क्या होता है. सो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्सटेंडेड बाय द एगो. एक्स्ट्रा टॉर्क जो एक्सटेंड कर रहे हैं वो कितना है, 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेट हो रहा है फॉर परसेंटेज ऑफ स्लिप दिया हुआ है, पोल दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दिया है. विच डेवलप द मैक्सिमम टॉर्क भी दिया हुआ है एट द स्पीड ऑफ 660 RPM. ओके, मैक्सिमम टॉर्क भी दे दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है एंड रोटर रेजिस्टेंस भी दिया है एंड दैट इज़ 0.05. सो क्या कहेंगे, हम पहले मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, फिर नॉर्मल टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये हमें मिलेगा कि एक्सटेंड कितना कर रहे हैं, नॉर्मल टॉर्क कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क. ओके, सो मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशंस हमारे पास इस तरह है कुछ, टी मैक्सिमम इक्वल टू के फाई ई टू एस बी अपॉन 2 into R2 where SB is your maximum sleep, SB your maximum sleep का इक्वेशन है. ओके, सो लेट्स फाउंड आउट कि वो कब हो रहा है. तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है हमारा, NS इक्वल टू 120 F/B. तो सिंक्रोनस स्पीड मिल गया. अब स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क पे स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6600. ओके, मैक्सिमम दिया हुआ है 660. तो उस टाइम जो हमें स्लिप मिलेगा वो मैक्सिमम स्लिप मिलेगा. सो दिस इज योर मैक्सिमम कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्लिप वी कैन से. ओके, एंड दैट इज
0.12. ओके, नाउ फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारे पास इक्वेशन है R2 इक्वल टू मैक्सिमम स्लिप इंटू x2. हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने डिफाइन किया हुआ है. ओके, सो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, सो यू कैन फाइंड द x2 बिकॉज ओके x2 मिल गया. नाउ पुट ऑल द वैल्यू in this equation. This is the maximum torque equation. K, phi, E2 all are constant. SB we have find 2 into R2. So R2 भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ से. ओके, जो दिया हुआ है R2 का. ओके, सो वी हैव दिस इक्वेशन 0.12 K phi E2. ओके, अब एक्सटेंड हो रहा है कब, जब 4% ऑफ स्लिप इज़ देयर. ओके, जब 4% ऑफ स्लीप इज़ देयर, सो इक्वेशन टॉर्क का ये है कि K phi E2 S R2 R2 स्क्वेयर प्लस S X2. ओके, ये मैक्सिमम स्लीप होगा तब का इक्वेशन है, ये नॉर्मल स्लीप का टॉर्क का इक्वेशन है रनिंग फॉर्म में. ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर, ऑल द वैल्यू. स्लीप दिया हुआ है 0.0, 4% स्लीप दिया हुआ है. ओके, रेजिस्टेंस 0.04. हमने यहाँ रिएक्टेंस फाइंड आउट कर दिया है. ओके, सो रिएक्टेंस की वैल्यू भी यहाँ रख दी है. सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन. ओके, नाउ टी द रेशियो ऑफ दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क मैक्सिमम, टी अपॉन टी मैक्सिमम. सो टी हमें फाइंड आउट करना है, टी मैक्सिमम उसने दिया हुआ है, और ये दोनों का रेशियो लोगे तो फाइनली ये कांस्टेंट वैल्यू तो कट हो जाएगी दोनों में से. ओके, सो फाइनली वी हैव 0.2778 into 0.1. So finally we got the torque. Okay, so this is extended torque. Okay. So this is a torque example. Okay, I hope you have clear with that. Okay, so numbers of examples is here, you can take. Okay, ये भी एक example से. Okay. Here what is given, the star connected rotor of induction motor as has a standstill impedance of दिया हुआ है 0.4 प्लस J ओम पर फेज, एंड रियोस्टेट इम्पीडेंस भी दिया हुआ है. ओके, सो टोटल इम्पीडेंस इन दोनों का सम हो जाएगा ऑब्वियस. ओके, यू हैव टू फाइंड द मोटर हैज़ अ इंड्यूस EMF 80 watt between slip ring at a standstill when connected to the normal supply. Okay, what you have to find, you have to find the rotor current at standstill. जब स्टैंडस्टिल मोड में है तब रोटर करंट फाइंड आउट करना है. कब, जब रियोस्टेट पिक्चर में है, रियोस्टेट लगाया हुआ है तब. एंड व्हेन द स्लिप रिंग आर शॉर्ट सर्किटेड एंड मोटर रनिंग एट अ स्लीप 3%. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द एट स्टैंडस्टिल कंडीशन. तो एट स्टैंडस्टिल कंडीशन में रोटर करंट क्या होगा स्टैंडस्टिल में, I इक्वल टू V/Z. सिंपल इक्वेशन वी हैव. तो वोल्टेज तो 80 वोल्ट दिया हुआ है, दैट इज़ अ लाइन वोल्टेज. तो फेज़ वोल्टेज 80 डिवाइड बाई √3. ओके, सो रोटर वोल्टेज मिल गया आपको पर फेज. नाउ Z यू हैव टू फाइंड. जो Z किया हुआ है इन दोनों का सम 0.4 प्लस J4 प्लस 6 प्लस J2. तो क्या होगा 6.4 प्लस J6 हो जाएगा. पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा और एक एंगल मिल जाएगा. ओके, दैट इज़ 8.7 और एंगल है 43 डिग्री, 43.15 डिग्री. सो नाउ टेक दैट I इक्वल टू V/Z. तो वोल्टेज क्या है हमारा 46.2 और इसका एम्पलीट्यूड क्या है 8.7. तो 46 डिवाइड बाई 8.7. तो यू कैन फाइंड द डायरेक्टली करंट 5.27 एट स्टैंड स्टिल, जब हमने रियोस्टेट पिक्चर में लिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस पिक्चर में लिया हुआ है. ओके, नाउ देन एट अ रनिंग कंडीशन. अब रनिंग कंडीशन में स्लिप पिक्चर में आएगा और वो स्लिप की वैल्यू उन्होंने दे दी हुई है, स्लिप इज़ गिवन. सो एट रनिंग कंडीशन रोटर वोल्टेज क्या होगा S इंटू E2 रोटर रनिंग कंडीशन में. ओके, सो स्लिप पिक्चर में आएगी तो स्लिप मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 46.2 के साथ क्या होगा स्लिप पिक्चर में होगी. तो ये वोल्टेज हो जाएगा एट दैट टाइम. देन रोटर रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी स्लिप के साथ मल्टीप्लाई होगा.
तो ये होगा रोटर रिएक्टेंस, रोटर इम्पीडेंस. सो अब हमारा रोटर इम्पीडेंस कुछ इस तरह होगा, बिकॉज अब रिएक्टेंस चेंज हो गया है हमारा. ओके, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंस में चेंज होगा कि भाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एस इंटू एस एक्स होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज देयर इन एक्स 2πf. ओके, 2πf है. ओके, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, सो फाइनली रोटर करंट क्या होगा, आर बाई जेड. अब आर की वैल्यू सॉरी, रोटर करंट इज वी बाई वी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 1.386. एंड इम्पीडेंस क्या फाइंड आउट किया है, मैग्नेट क्या है 0.4176. तो 1.36386 डिवाइड बाई 0.4176 एंड दैट इज इक्वल टू 3.32. ओके, so this is the current at standstill condition, this is current at running condition. Okay, so I hope you have clear with the example. Okay, so here we just ended our session. Okay, one more example, and now you have assignment. Okay, that is again in the form of some examples. Okay, for reference you can choose the BL Thareja, electrical machine by BL Thareja. Okay, so thank you.